back to my channel. Today we'll discuss MSc CE 001 econometric methods. Important question: what are the remedial measures for the problem of autocorrelation? So there are first non-iterative methods of obtaining P. First है estimating P using Durbin-Watson statistics. Second है estimating P from residuals. Third है Durbin's method. फिर है iterative methods. इसमें आता है the Cochran-Orcutt method. ठीक है, Hildreth-Lou search procedure, Paris-Winston procedure, or some other methods by removing a small number of outliers, removing outliers using dummy variables. तो first we'll discuss the non-iterative methods of obtaining P are as follows. पहला है using the Durbin-Watson statistics. तो since the D has been estimated while conducting Durbin-Watson test, we know as the sample gets larger, T approaches to infinity. This Durbin-Watson test statistics tends to 1 minus p cap. So D is approximately equal to 2 bracket 1 minus p cap. This implies p cap is nothing but equals to 1 minus D by 2. Thus we have constructed the estimator. Note, the estimator is only used for very large samples, and in case of small samples it should be avoided at all cost because it gives highly incorrect results. तो ये सिर्फ केस कब यूज़ हो सकता है जब हमारे पास बहुत बड़ा सैम्पल हो. स्मॉल सैम्पल के केस में हमें ये अवॉइड करना होता है क्योंकि वरना ये इनएक्यूरेट या गलत रिजल्ट दे सकता है. सेकेंड है फ्रॉम रेसिड्यूअल्स. तो वी कैन ऑब्टेन पी बाय रनिंग अ रिग्रेशन ऑफ रेसिड्यूअल्स यू कैप टी एंड यू कैप टी माइनस 1 इफ द AR1 autoregressive 1 scheme ut is equals to p ut minus 1 plus et is true. That is u cap t is equals to p u cap t minus 1 plus et for t equals to 2 3 till capital T. It should be noted that there is no constant in equation 1. कोई constant नहीं है, देखो कोई constant term नहीं है. Moreover we know that u cap t are consistent estimators of true ut. So the estimate of p obtained is also consistent. अगर u cap t कंसिस्टेंट एस्टिमेटर यू टी का तो सिमिलरली पी के जो हम ऑब्टेन करेंगे वो भी कंसिस्टेंट होगा, एस्टिमेट ऑफ पी भी कंसिस्टेंट होगा. ऑल्सो वंस वी अप्लाई दी Cochran-Orcutt CO ट्रांसफॉर्मेशन एज वाई टी माइनस पी वाई टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू बीटा 1 माइनस पी प्लस बीटा 2 एक्स टी माइनस पी एक्स टी माइनस 1 प्लस ई टी, वी कैन यूज द एस्टिमेट टू ऑब्टेन ब्लू दैट इज बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2. थर्ड है डर्बिन मेथड. फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ डर्बिन मेथड. पहला है बाय रीअरेंजिंग इक्वेशन 2 वी गेट. तो ये जो ऊपर इक्वेशन थी इसको रीअरेंज करेंगे तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं. वाई टी इज इक्वल्स टू पी वाई टी माइनस 1 प्लस बीटा 1 माइनस पी प्लस बीटा 2 एक्स टी माइनस पी बीटा 2 एक्स टी माइनस 1 प्लस ई टी. उसके बाद हम ओ एल एस एस्टिमेटर रन करेंगे ये थर्ड इक्वेशन में. इट शुड बी नोटेड दैट वी डू नॉट हैव एनी प्रायर एस्टिमेट ऑफ पी है. हमारे पास पी का कोई एस्टिमेट नहीं है. Moreover, in this case, the estimate of P obtained called the Durbin estimate of P and represented by P cap D as the coefficient of y t minus 1 is biased but consistent. Now we estimate the regression y t minus P y t minus 1 जो ऊपर इक्वेशन थी is equals to B1 bracket 1 minus P, that is equation 2 दोबारा लिखिए, plus B2 beta 2 bracket xt minus p xt minus 1 plus et by using p cap d, that is estimate of p by using Durbin method to get the estimates of beta 1 and beta 2. now हम लोगों ने नॉन आइटरेटिव में तो तीनों डिस्कस कर लिए, ठीक है. डर्बिन टेस्ट वाले से भी करके देख लो, डर्बिन मेथड और रेसिड्यूअल से तीनों कर ली. तो डर्बिन मेथड भी हो गया, रेसिड्यूअल से भी होगा, डर्बिन वाटसन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी हो गया. ये नॉन आइटरेटिव थे. अब आइटरेटिव मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग पी आर एज फॉलोज, उसको डिस्कस. आइटरेटिव में पहला है द Cochran-Orcutt मेथड. इस मेथड को नेम आफ्टर किया स्टैटिस्टिशियन डोनाल्ड कॉचरन एंड गाय ऑर्कुट हु वर्कड इन द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स कैम्ब्रिज यूके. ठीक है. इट एडजस्ट अ लीनियर मॉडल फॉर सीरियल कोरिलेशन इन द एरर टर्म. इट हैज़ फॉलोइंग स्टेप. स्टेप 1 में क्या है, पहले हम इनिशियल एस्टिमेट निकालेंगे पी का, मोस्टली being equal to 0 and OLS estimates of beta 1 and beta 2 from yt is equals to beta 1 plus beta 2 xt plus ut जहाँ t 1 से लेके 2 कैपिटल T तक है. हमने एज्यूम किया p की वैल्यू 0 है. अगर हम एज्यूम करते हैं कि p 0 नहीं है तब हमारी इक्वेशन क्या होगी, yt माइनस p yt माइनस 1 इज इक्वल्स टू बीटा 1 माइनस p प्लस बीटा 2 xt माइनस p xt माइनस 1 प्लस et. वी कैलकुलेट द रेसिड्यूअल u cap t
also once we have OLS estimates, we can run regression u cap t is equals to p u cap t minus 1 plus et, where t goes from 2 3 to till capital T. As the result, the estimate of p is p cap co is equal to summation u cap t into u cap t minus 1 divided by summation of u cap t का whole square, where both summation run over t is equals to 2 3 till capital T, as we lost one of the observation due to lag. एक ऑब्जर्वेशन हम लैग की वजह से कम कर देते हैं या लूज़ कर देते हैं. स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे रिग्रेशन ऑन 2 इक्वेशन 2 जो हमने निकाली थी वाई टी वाली, ये वाली इक्वेशन वाई टी माइनस पी वाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस पी प्लस बीटा 2 ब्रैकेट एक्स टी माइनस पी एक्स टी माइनस 1 प्लस ई टी पे हम रिग्रेशन रन करेंगे विद p cap co, that is Cauchy automator, instead of p. This procedure can also be iterated by computing new residuals based on the estimates of beta 1 and beta 2 from equation 2, which are then used to calculate new p cap co value, and so on until convergence takes place. It implies that successive value of p that is estimated do not substantially, the difference being less than 0.01. Second है द हिल्टररेथ-लू सर्च प्रोसीजर. तो इस मेथड में कौन कौन से प्रोसीजर स्टेप्स इन्वॉल्व है. पहला स्टेप है, देखो p की वैल्यू -1 से 1 के बीच होगी, इक्वल टू और लेस देन, p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन, सॉरी p की वैल्यू बिटवीन -1 to 1 होगी, दैट इज़ कि ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, सॉरी उल्टा बोल दिया था, एंड लेस देन इक्वल टू 1 है. पहले -1 से ग्रेटर है और इक्वल हो सकती है -1 के, या उससे ग्रेटर होगी, या फिर लेस होगी 1 से, या 1 के बराबर होगी. ठीक है. सो इन दिस प्रोसीजर वी सर्च ओवर द रेंज -1 to 1. वी यूज़ द वैल्यू ऑफ p बिटवीन -0.9 एंड 0.9 इन द इंटरवल ऑफ 0.1. फिर हम कंप्यूट करेंगे रिग्रेशन ऑफ ईच फॉर ईच p इन द इक्वेशन पता ही है, वाई टी इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स टी प्लस यू टी, जहाँ टी की वैल्यू 1 2 टिल कैपिटल टी जाती है. फिर हम रिपोर्ट करेंगे रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द p. फिर हम वी कैन गेट आवर चॉइस ऑफ p बाय मेकिंग यूज ऑफ मिनिमम रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रिग्रेशन विल गिव द एस्टिमेट ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2. बीटा 1 बीटा 2 का एस्टिमेट मिल जाएगा सिग्मा स्क्वायर का. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम रिफाइन करेंगे प्रोसीजर को अराउंड बेस्ट p फाउंड इन स्टेप 1. दिस सर्च प्रोसीजर गार्ड्स अगेंस्ट अ लोकल मिनिमम. थर्ड है पेरिस विंस्टन प्रोसीजर टू अवॉइड द लॉस ऑफ वन ऑब्जर्वेशन ड्यू टू लैगिंग अंडर द कॉचरन-ऑरकुट मेथड. हम उसमें एक वेरिएबल या एक ऑब्जर्वेशन लैग निकल जाती है, लूज़ कर जाते हैं हम, क्योंकि लैकिंग होती है. वी यूज़ पार्सन-विंस्टन ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज़ फॉलोइंग स्टेप. पहले स्टेप में क्या, हम फर्स्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई बाय √1 माइनस पी स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन के. तो दैट इज़ √1 माइनस पी स्क्वायर वाई 1 इज इक्वल्स टू बीटा 1 √1 माइनस पी स्क्वायर प्लस बीटा 2 1 माइनस पी स्क्वायर x1 प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर u1. सेकेंड में हम क्या करेंगे, वी एड दिस ट्रांसफॉर्म्ड फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टू CO ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन फॉर t इज इक्वल्स टू 2 3 टिल कैपिटल T, एंड रन द रिग्रेशन ऑन ऑल t ऑब्जर्वेशन एज इन वाई टी माइनस पी वाई टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू बीटा 1 जो पहले निकालता 1 माइनस पी प्लस बीटा 2 एक्स टी माइनस p x t minus 1 plus e t. For simplicity, we define y cap t is equals to y t minus p y t minus 1 और x के ऊपर बार लगा के t is equals to x t minus p x t minus 1. तो इसमें हम लोग फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को भी डिफाइन कर देंगे. y कैप ऐसे बार को t को क्या लिख दे, इक्वल्स टू y t माइनस 1 √1 माइनस पी स्क्वायर वाई टी माइनस 1 एंड x कैप t इज इक्वल्स टू एक्स टी माइनस √1 माइनस पी स्क्वायर एक्स टी माइनस 1. और देखो ये पी की जगह हमने ये डाल दिया, बाकी सेम है. इट इज़ यूज फॉर स्मॉलर सैम्पल्स. तो ये केस जो मेथड होता है, ये विंस्टन प्रोसीजर जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये स्मॉल सैम्पल्स के केस में होता है. तो दैट वाज इट ऑल फॉर रेमेडियल मेजर्स. So that was it for all the remedial measures for autocorrelation. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.